ہم کلام کے لیے دعا کریں گے۔ ہاللویا، تھینک یو جیسس۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو اے باپ خداوند، آج کے دن کے لیے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند پھر سے تو نے یہ موقع دیا، پھر سے تو نے ہمارے اوپر رحم کیا کہ ہم تیری حضوری میں آئے، تیرے قدموں میں بیٹھے اور تیرے منہ کی باتیں سنے۔ خداوند خدا، وہ کلام جو ہمیں زندگی دیتا ہے، جو ہمیں نیا زور دیتا ہے، جو ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح تیری مانند ہمیں بنا رہا ہے، خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو خداوند تو روز اپنے تخت سے خداوند خدا سہون سے ہمارے ساتھ بول رہا ہے، کلام کر رہا ہے، خداوند ہماری زندگیوں کو کاٹ رہا ہے، چھانٹ رہا ہے، خداوند ہمیں اپنی مانند بنا رہا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، آج جب کلام کا بیج بویا جائے تو خداوند یسوع وہ 100 گنا پھل لے کے آئے، اور کہیں پہ بھی بدی کی قوتیں جو اس کلام کو سمجھنے میں، اس کے اوپر عمل کرنے سے روکتی ہیں، خداوند یسوع کے نام سے جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان گھروں سے، اس جگہ سے، اپنی زندگیوں سے یسوع کے نام سے ساری بدی کی قوتوں کو نکل جانے کا حکم دیتی ہوں یسوع کے نام سے۔ خداوند تیرے کلام کو آج ہم سنیں تو خداوند ہمارے روحانی کان کھلے، روحانی آنکھیں کھل جائیں، روشن ہو جائیں خداوند خدا، تاکہ ہم چراغوں کی مانند اس دنیا میں روشن ہو اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند خدا، ہم پاک بن جائیں خداوند یسوع، تیری مانند بن جائے، ہمارا مزاج تیرے جیسا ہو جائے خداوند خدا، ہماری محبت جو ہے تجھ سے بڑھتی جائے خداوند، ہم تجھ میں پیوست ہوتے جائیں، اور خداوند تیری حلیمی ہمارے اندر آ جائے خداوند خدا۔ جب اس کلام کو ہم سنیں تو خداوند خدا وہ مکاشفے، وہ بھید خداوند خدا جو تو ہمارے ساتھ وہ اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہے خداوند، وہ کھلتے جائیں خداوند، اور ابلیس کا سارا زور ٹوٹ جائے جو ہمیں تیری باتوں کو سمجھنے نہیں دیتا، تیرے کلام کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتا۔ یسوع کے نام سے آج اس کا سارا زور ٹوٹ جائے خداوند، ہمارے گروپ سے ایک ایک ممبر کے اوپر جو میٹنگ میں موجود ہیں، یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں سے ابلیس کا سارا زور ٹوٹ جائے خداوند خدا۔ کہیں پہ بھی اس نے بندروں میں باندھا ہے، کہیں ہم جکڑے ہوئے ہیں، یسوع کے نام سے آج اس کا زور ٹوٹ جائے خداوند، اس کے سارے منصوبے جو ہمارے خلاف ہیں، جو ہماری صحت کے خلاف ہیں، جو ہمارے کاموں کے خلاف ہیں، نیک کاموں کے، پاک کاموں کے، راست کاموں کے، جس کے لیے خداوند تو نے زمین پہ بھیجا خداوند، آج اس کا سارا زور ٹوٹ جائے اور ہم تیرے لوگ فتح پہ فتح حاصل کرتے جائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اس دعا کو بڑے ہی ایمان اور توکل اور بھروسے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ ہم آج پہلے سسٹر امندیپ سے اور ندا سے ٹیسٹمنی سنیں گے اور پھر ہم کلام کو سیکھیں گے۔ جی سسٹر امندیپ اور ندا نوبل، خدا نے آپ کی زندگی میں جو کام کیا ہے، خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارا بھی ایمان بڑھے خدا ان پہ۔ جی پریز دی لارڈ۔ پریز دی لارڈ۔ ہاں جی، میں اپنی ٹیسٹمنی شیئر کرنا ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ۔ ਮੇਰਾ ਨਾ 2009 ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ 14 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2023 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾ ਨਾੜੀ ਫਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خدا ان ہمارا زندہ خدا ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ جی ندا۔
गॉड ब्लेस यू सिस्टर। खुदावंद और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में गवाहियाँ लेके आए। जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह है उसके पास गवाही है। हालेलुया। जी निदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड दीदी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ना बताना था कि 1 महीना हो गया कि मेरी तबीयत कुछ खराब रहती थी। पता मुझे चल रहा था कि तबीयत मेरी खराब होना शुरू हो रही है। चक्कर आ जाता था, कभी भी ऐसे स्वेलिंग हो रही थी फेस पे। तो मैंने ना कहा कि मैंने इस दफ़ा ना डॉक्टर के पास नहीं जाना ना, मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना। लेकिन ना अपनी डॉक्टरी करके तो मैंने टेस्ट करा लिया, यूरिन टेस्ट करवा लिया, ब्लड टेस्ट करवा लिया। तो रिपोर्ट कुछ बेहतर नहीं आई ना। ब्लड की कमी आई और यूरिन में थोड़ा-सा बहुत बहुत रेयर। वो भी शायद मैंने टेस्ट करवा लिया तो इसलिए आ गया। वरना खुदा सब बेहतर ही करता है शायद। क्योंकि जब मैंने कहा था कि मैं नहीं जाना, लेकिन मैंने अपनी डॉक्टरी कर ली। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराएँ, साथ ही मुझे पेन स्टार्ट हो गई। तो 1 हफ्ता मेरा बड़ा ही मतलब बोझिल सा गुज़रा, बहुत ही बोझिल सा ना। इवन कि मैंने किसी को ना कॉल की ना कुछ ऐसे-वैसे, तो बस ये था कि जैसे बोझ सा है कोई। लेकिन ये है कि दुआ करती रही। मैंने कहा अच्छा, मैंने ना जब तक मेरी पेन नहीं ना ठीक होगी, मैंने नहीं डॉक्टर के पास जाना, अल्ट्रासाउंड के लिए नहीं जाना। क्योंकि जब मेरी पेन ठीक होगी तो इसका मतलब कि मेरा अल्ट्रासाउंड भी क्लियर आएगा, बिल्कुल ना। तो 1 हफ्ता से हो गया था, मैं दुआ कर रही थी, लेकिन ये है कि कुछ सम टाइम अगर आप प्रेयर छोड़ देते हो और उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको उस तरह से एकदम से वही मसा, वही चीज़ दोबारा एकदम नहीं फ़ील होती है। तो मुझे भी इसी तरह से हो रहा था। तो फिर उस दिन जब सैटरडे को मैंने मामू को भी बोला, बीच-बीच में मैं नन्ही बाजी को, बसमा बाजी को कहती रही मेरे लिए दुआ करें, खुदावंद साथ-साथ ताकत देता रहा, उसी तरह से ड्यूटी पे जाती रही। ठीक भी हो जाती थी, फिर शुरू, फिर ठीक, फिर शुरू। उस दिन फिर मैंने मामू को बोला कि मामू मेरे लिए ना दुआ करें। मामू ने पूछा क्या हुआ है? मैंने कहा मेरी बस तबीयत नहीं ठीक है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने दुआ की तो उसी रात से खुदावंद के फजल से मेरी दर्द ठीक हो गई ना। और हम शुक्र है खुदावंद का दूसरा तीसरा दिन है कि दर्द मेरी ठीक है। और खुद ब खुद से ही किसी ने मुझे ना ऐसे ही पूछ के तो अल्ट्रासाउंड का टाइम भी ले दिया सैटरडे का ना, नेक्स्ट सैटरडे का, ये जो अब अपकमिंग है। तो खुदावंद का शुक्र हो इसके सारे वादों के लिए कि वो हमारी ज़िंदगी में खुदावंद अपने वादे पूरे करता है। और जब मामू की दुआ करने से पहले मैं दुआ करती थी तो सम टाइम जब मैं अपनी डिलीवरेंस के लिए दुआ करती हूँ या जो भी मुझे बीमारी या कुछ भी मसला मसाइल जो होते हैं, तो जब मैं दुआ करती हूँ ना तो खुद ब खुद जब मैं वर्शिप करती हूँ तो मेरे ना खुद ब खुद से आंसू बहने लग जाते हैं। लेकिन उस दिन तक 1 हफ्ता हो गया था दुआ कर रही थी तो इस तरह की कोई फीलिंग नहीं थी मुझे आ रही। लेकिन मैं दुआ करती जा रही थी, मैं वर्शिप करती जा रही थी, दुआ करती जा रही थी। लेकिन जिस टाइम मामू ने मेरे लिए दुआ शुरू की तो मेरी आँखों से आंसू आना शुरू हो गए, उसी दुआ में। उसके बाद फिर मैंने अपनी पर्सनल प्रेयर की बैठ के उसमें भी, और मुझे पता था कि खुदावन ने मेरी दुआ सुन ली, या खुदावन का शुक्र। वो जो कोई ब्लॉकेज थी कि वो उस तरह से मुझे वो फीलिंग नहीं थी आ रही दुआ की, मसा की, लेकिन वो उस दुआ के बाद खुदावन का शुक्र है कि वो सब ठीक हुआ। तो मैं भी वफा से भी शेयर कर रही थी कि वफा जब मुझे इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कह रही थी कि तू सबा को बता देना, तो उसने मुझे कहा तू खुद बता देना कि जब मुझे इस तरह से कोई भी मसला मसाइल पे पेश आता है ना, निदा तो मैं वर्शिप करती हूँ। सबसे पहले वर्शिप करती हूँ। मुख्तलिफ टॉपिक आपको मिल जाते हैं कि जी, ओके ठीक है। हाँ, आपकी आवाज़ बंद हो गई। हेलो। ठीक है, आ रही है अभी। अच्छा। गीतों की किताब में मैंने तो काफ़ी टॉपिक एंड में लिखे होते हैं कि रूहानी जंग के गीत हैं, ये फतह के गीत हैं, ये शिफा के गीत हैं। वहाँ से मैंने कहा मैं अपनी नीड के हिसाब से देख लेती हूँ और लिस्ट में जितने फिर गीत मुझे आते होते हैं, वो मैं फिर वो गाना शुरू कर देती हूँ। और जब मैं गा रही होती हूँ, एक टाइम ऐसा आता है कि मुझे फ़ील होना शुरू हो जाता है कि जैसे आप देख रहे होते हो कि आपके घर से चीज़ें निकल रही हैं, आपके बदन से, आपकी बॉडी से वो चीज़ें निकल रही हैं। और आपको खुद ब खुद से फ़ील होना शुरू हो जाता है। और फिर जब आप फतह के गीत गाते हो या खुदावन की हज़ूरी के गीत गाते हैं, फिर आपको ऐसे लगता है कि जैसे फ़रिश्तेगान जो हैं, वो आपके चारों तरफ हैं, वो आपके साथ मिलके गा रहे हैं। ऑल्दो कि कोई आपके साथ नहीं गा रहा, घर में से कोई आपको कंपनी नहीं कर रहा, कोई आपके साथ शामिल नहीं हो रहा, लेकिन खुदावन के फ़रिश्ते चारों तरफ आपके साथ हमदो सना कर रहे होते हैं। और खुदावन के फ़रिश्ते की बाड़ लग जाती, ख़ैमा बना लेता है वो हमारे इर्द। और फिर खुदावन का तख्त लग जाता है, मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं बता रही थी ये वफ़ा को कि
चीजें खुद ब खुद से ठीक होना शुरू हो जाती हैं, हर तरह से ऐसे लगता है जैसे आप वॉश होते जा रहे हो, वॉश होते जा रहे हो। तो खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन, चाहे हम बेवफा हो जाते हैं, लेकिन खुदावन जो है वो हमारा बावफा खुदावन है। तो जब भी हम उसकी हजूरी में झुकते हैं, वो हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। हाँ जी, हालेलुया, प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है, और खुदावंद हमें शिफा देता है हर एरिया में। कहीं पे भी हमें प्रॉब्लम है तो इसलिए खुदावंद का शुक्र करें, और जरूर हम इसी तरह, जिस तरह नेता ने कहा कि आप बैठा करें, गीत गाया करें, और जो भी प्रॉब्लम है, हमारा जिंदा खुदावंद जो है वो हल करने की, उस मुश्किल को दूर करने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू अमनदीप और नेता। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद आपकी जिंदगी में रोज, हर रोज एक नई गवाही जो है वो रखे, और आप इसी तरह अपने जिंदा खुदा को अपनी गवाहियों से ऊंचा करते रहें। गॉड ब्लेस यू। और शैतान जो है शर्मिंदा होता है जब हम गवाही देते हैं, तो वो शर्मिंदा होता है, उसको आग लगती है। तो जरूर गवाही दिया करें हालेलुया, कि उसको आग लगती रहे। प्रेज गॉड। हम सीख रहे थे कल पास ओवर के बारे में। फसा का जो त्योहार है, ईद है, जो खुदावंद ने हमें मनाने के लिए कहा, खुदावंद बाप ने, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करो, है ना। तो हम थोड़ा सीख रहे हैं कि पुराने एहतनामे से कि खुदावंद बाप ने भी वैसा वैसा ही कह लें करने को कहा, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें ये करने के लिए कहा। तो इसलिए अभी हम आज के दिन तक कह लें कि पुराना जो ऐदनामा है, या खुदावंद बाप ने जो फसा मनाना है, या फसा का मतलब क्या था, हमने कल थोड़ा समझा कि जब मिस्र में से इसराइलियों को खुदावंद बड़े अपने जाहो जलाल के साथ निकाल के लाया, तो खुदावंद ने कहा कि इसको नस्ल दर नस्ल, या इसको मनाना है अब्दियत तक, है ना। और फसा का हमने सीखा कि जो जिस रात को खुदावंद ने उनको बड़े अपने जोरे बाजू से उस मिस्र में से निकाला, और उस रात जो पलोठे थे मिस्रियों के, वो सारे मर गए। मौत का फरिश्ता जो है वहां से गुजरा, और खुदावंद ने अपने लोग जो थे, इस्राएली लोग, है ना, उनके सारे पलोठों को और सारी पूरी फैमिली को खुदावंद ने बचा लिया, है ना। जिन्होंने वो बर्रे का जो लहू था, जो खुदावंद ने उनको कहा कि बेऐब बर्रा लेना, और उसके खून को तुम अपनी चौखटों के ऊपर लगाना, और उसका जो उसको पूरा पूरा खाना, है ना। और वो हमने सीखा कि वो खड़े होके और जूतियां पहन के, लाठियां हाथ में पकड़ के, खुदावंद ने कहा कि वो उसको पूरा पूरा खाना, उसकी कोई हड्डी जो है ना तोड़ना, है ना। और जिस घर के ऊपर खून लगा होगा उस बर्रे का, खुदावंद का फरिश्ता जो है, मौत का फरिश्ता जो है, वो वहां से गुजर जाएगा, वो उस घर को छोड़ देगा, है ना। तो वो लोग जो खून में छुपे होंगे, या जिन चौखटों के ऊपर, दरवाजों के ऊपर वो बर्रे का खून लगा होगा, वो बच जाएंगे, है ना। तो हमने सीखा कि फसा का ये मतलब है, पास ओवर का, कि वो मौत का फरिश्ता जो है उस घर को छोड़ देगा। इसीलिए हमें ये भी कहा जाता है कि हम छुड़ाए गए हैं,
हम बचाए गए हैं, है ना? तो मौत से बचाए गए हैं। तो मौत का फरिश्ता उस रात जो था, इस्राएलियों के किसी भी, क्योंकि बर्रे का खून जो था वो लगा हुआ था, तो किसी भी इस्राएली की उस रात, जब मिस्रियों के सारे पलौठे जो थे, जानवर भी और इंसान भी, सारे पलौठे जो थे मर गए थे, है ना? लेकिन इस्राएलियों को खुदा ने बचाया, उनके पलौठों को खुदा ने बचाया। तो फसा का ये मतलब है कि पास ओवर, यानी उस घर को छोड़ दिया फरिश्ते ने और आगे चला गया, है ना? तो इसलिए ये खुदावंद ने कहा कि ये जो ईद है, ये आप लोगों ने, इस्राएलियों ने मनानी है, और सब ने मनानी है जिनके खतने हुए हैं, है ना? और खतना का हमने देखा कि अब जो हम मसीह में आ जाते हैं, यानी नए सिरे से एक किस्म का पैदा हो जाते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो वो लोग इस पाक जो रोटी है, पाक मेज जो है, इसमें शरीक होते हैं, है ना? तो ये खुदावंद ने, हमने कल पढ़ा था खरूज की किताब, कूच की किताब, उसके 12 चैप्टर में थोड़े सारा जो इसका कैसे कैसे हुआ था, थोड़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ा था, है ना? और यानी ये था पास ओवर और फसा, और जो बर्रा था, जो बेऐब बर्रा है, जो कि खुदा यीशु मसीह को पेश करता है। लेकिन हम कल जो है थोड़ा सा इस पे, यानी खुदा यीशु मसीह को कैसे कैसे पेश करता है, वो थोड़ा सीखेंगे आज। फिर हम जो पहला फसा, यानी ये जिस रात को ये सारा हुआ, खुदावंद ने अपने लोगों को, इस्राएली कौम को जो था, किस तरह से बचाया, किस तरह से फर्क किया मिस्रियों में और इस्राएलियों में, है ना? कि उनके जो पलौठे हम मार रहे हैं, लेकिन इस्राएली जो थे वो बच गए, है ना? तो खुदावंद ने फर्क किया, और साफ लिखा है कि खुदावंद ने अपने लोगों में और इस्राएलियों में फर्क किया। तो वो आज भी बिल्कुल उसी तरह करता है। जो उसके लोग हैं, जो उसके खून में छुपे हुए हैं, खुदा यीशु मसीह के लहू में छुपे हुए हैं, खुदावंद उनको बचाता है। लेकिन एक ही बात यहाँ मैं कह दूं कि खुदावंद ने उस रात उनको क्या कहा था कि कोई भी बाहर ना निकले। जब इन चौखटों के ऊपर खून लगाया है, घरों के दरवाजों के ऊपर, तो कोई उस रात बाहर ना निकले। यानी जब आप खून लगा लेते हैं खुदा यीशु मसीह का भी, तो आप खुद अगर बाहर निकलेंगे, खुद उस हुक्म को तोड़ेंगे, कोई गुनाह करते हैं, कोई झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, या बदगोइयां करते हैं, या कुछ भी, तो आप खुद उस दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, है ना? खुदावंद यीशु मसीह का खून हमारी हिफाजत करता है, लेकिन उसकी फर्माबरदारी में जब रहते हैं, जैसे ही उसके हुक्म को तोड़ते हैं, तो खुदावंद उसके बाद भी हमारी मदद करता है, लेकिन उस तरह से बचा के नहीं रखता जिस तरह से इनको कुछ भी नहीं हुआ था, है ना? तो ये एक मैं कहूंगी कि लेवल है। कुछ जो है दरवाजे नहीं खोलते और बाहर नहीं जाते, फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारते हैं। तो वो एक, मैं कहूंगी कि कसरत से उनकी जिंदगी जो है खुदावंद में बढ़ती रहती है। लेकिन जो बार बार दरवाजे खोल देते हैं, खुद ही उन हुक्मों को तोड़ देते हैं और दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, तो वो उनका असर जो है, जो हलाकत का है, जो मौत का, यानी गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो जब हम गुनाह करते हैं, तो खुद उस खून की कवरिंग में से बाहर निकल आते हैं। तो फिर हमारे ऊपर यानी जो कह लें कि एक वैसी वाली कवरिंग नहीं रहती, और जब तक दोबारा से फिर उस खून में कवर ना हो, तब तक एक कह लें कि हम मौत के उसमें से गुजर रहे होते हैं, प्रोसेस में से। तो इसलिए ये उस रात भी एक हुक्म दिया था खुदावंद ने कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। जिन चौखटों के ऊपर इसराइलियों के घरों के दरवाजों पे उस बर्रे का लहू लगा था, वो घरों से बाहर ना निकले। ठीक है? तो आज हमने भी ये करना है। और जो
यानी ये उस रात जो हुआ, खुदावंद बड़े अपने चाहो जलाल से खुदावंद अपने लोगों को यानी कह लें बचा लिया और मिस्र में से निकाल लिया। तो खुदावंद ने कहा कि ये फसह की जो ईद है, ये आपने नस्ल दर नस्ल जो है मनानी है। तो उसके बाद जब खुदावंद उनको निकाल के ले आया और उन्होंने जो पहला फसह था जो मनाया, उन्होंने क्या-क्या उसमें किया या अब तक जैसे कह लें आज के दिन तक जो इस्राएली इस फसह को मनाते हैं और जो इसमें यानी इसको याद करते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि जो कुछ ये हुआ है, तुम अपने बच्चों को बताना कि कैसे खुदावंद ने तुम्हें बचाया। और अ, उसमें जो उन्होंने खुदावंद ने कहा था कि साग-पात, कड़वा साग-पात खाना और आज हम उसके बारे में सीखेंगे कि जो कुछ ये उस दिन फसह के दिन यानी जिस दिन ये मनाते हैं, क्योंकि हमने सीखा ये 7 दिन मनाते हैं। इस दिन बड़ा जो था कह लें कि कुर्बान हुआ और हमने सीखा कि ये महीने का साल का पहला महीना होता है और उसकी 14 तारीख को ये ईद फसह मनाते हैं या उस बर्रे को कुर्बान करते हैं, जैसा कि हमारा खुदा यीशु मसीह भी फसह वाले दिन कुर्बान हुआ था उसकी। और वो हमारी निजात है, वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो बचाने वाला है ना। तो उस रात जो कुछ उन्होंने किया था या जो कुछ खाया था, उसके मीनिंग क्या है, ये हम थोड़ा-सा सीखेंगे ताकि इस जैसे क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि इसको याद करते रहना। तो मनाने का क्या मतलब है कि उसको याद करते रहना कि खुदावंद ने उनको वहाँ से छुड़ाया था। तो इसलिए जो कुछ खुदावंद ने वो जलाली काम किए थे और जो हमने खुरूज की किताब में पढ़ा कि वो उनको याद करना है और जो कुछ उसमें करते हैं, दुआ करते हैं, गीत गाते हैं वो लोग इस्राएली। और जो रोटी या जो कुछ भी तो फसह में, आज उसके थोड़े से मीनिंग जो हैं वो हम सीखेंगे कि उसका उनकी ज़िंदगी में क्या मतलब था और अब हमारी जो हम मसीही हैं उनके उनकी ज़िंदगी में क्या इसके थोड़े-थोड़े जो मतलब हैं, रूहानी तौर पे कह लें, क्या मतलब है ना? तो ये फसह जो है वो इस तरह अपनी जो मेज़ जो है वो तैयार करते हैं, जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह ने भी फसह जो था उसकी तैयारी की थी। और हम बार-बार अंजीलों में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फसह के दिन हैकल में जो थे या यरूशलेम में खुदावंद जो है वो जाते थे। तो इसलिए हम फसह जो है जब मनाते हैं तो ये इस्राएलियों ने एक किस्म का कह लें कि ये जो चीज़ें थी उनकी प्लेट में कह लें कि या टेबल पे वो सजाते हैं और तैयारी करते हैं। तो इनके पीछे थोड़े-थोड़े मतलब हैं, वो हम थोड़ा-सा देखते हैं कि अ, ये जो प्याला है या ये थोड़ी चीज़ें हैं उनके क्या मतलब हैं। तो हम एक हवाला पढ़ते हैं, हमारे साथ में है वफ़ा है और अंजना है ना? गिनती 9 बाब उसकी आप पहली आयत से पढ़ना। गिनती की किताब उसका 9 बाब उसकी 1 से 5 आयत तक का पढ़ना। 1 से 5 हुँ, ਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਯਹੋਵਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸਿਨਾਈ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਵੀਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਮੂਸਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਸਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14ਵੀਂ ਦੀ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਨਾਈ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। आमीन। आमीन। हाँ जी, वफा है हमारे साथ। मैं पढ़ती हूँ। बनी इसराइल के मुल्क के मिस्र से निकलने के दूसरे बरस के पहले महीने में खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा कि बनी इसराइल ईद फसा उसके मुअय्यन वक्त पर मनाए। इसी महीने की 14वीं तारीख की शाम को तुम वक्त मुअय्यन पर ये ईद मनाना और जितने उसके आइन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। सो मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म किया कि ईद फसा करें और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दस्ते सीना में ईद फसा की और बनी इसराइल ने सब पर जो खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। हाँ जी, और खरूज की किताब उसका जो 12 बाब था उसकी मैं 7 आयत से पढ़ना, जिसमें 8 आयत में महल, जिसमें खुदा ने कहा कि उसे कच्चा या पानी में उबाल के ना खाना, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भूनकर खाना। हाँ जी, आगे भी ठीक है, बस ठीक है। यानी उसको किसके साथ, एक तो रोटी खानी है और एक भुना हुआ जो वो बर्रा था उसको खाना है, उसकी हड्डी ना टूटी हो, और कड़वे साग पात के साथ खाना है। और फिर हमने देखा था कि अपनी कमर को बांधे, जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। तो ये आज हम थोड़ा सीखेंगे, ये यानी जो 10 और 11 आयत है कि खुदावंद ने इस तरह से उनको फसा जो है वो खाने के लिए कहा, और ये वाला जो कड़वा साग पात है और रोटी खुदावंद ने कहा कि खानी, और वो जो बर्रा जो था, है ना। तो इसके थोड़े थोड़े जैसे कह ले मीनिंग है, क्योंकि खुदावंद ने इनको कहा कि इसको इसी क्या बोलते हैं 12 चैप्टर में ही कि इसको यानी ये एक इबादत पूरी, जैसे कह लें कि जैसे एक वो टेबल सजाते हैं, फिर दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, और जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह भी जब फसा करके फिर वो गाते हुए गतसमनी के बाग में गए थे, वहां पे भी उन्होंने गीत गाए थे। और ये इसराइली जो हैं ये कहते हैं कि ये 113 ज़बूर है हम, और 118 ज़बूर जो है वो ये गाते हैं फसह के टाइम पे अपनी इबादत में जो वो करते हैं। और इन्होंने एक पूरी एक अपनी एक जैसे कह लें किताब है जिसमें सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है, तो वो साथ साथ ये दुआ जो है या वो पढ़ते हैं इसराइली जो है, वो बैठ के देखें ये वो किताब है तो वो पढ़ते हैं, यानी एक किस्म की प्रेयर, और जो सारे इसके जो मीनिंग है वो करते हैं इसराइली जो कौम है। और ये सारा कुछ जो है वो एक किस्म का कह लें सजा के रखते हैं। और मैं जो है यानी शीरा जो है ये अंगूर का शीरा होता है। मैं लिखा हुआ या कहते, लेकिन इसराइली कौम जो थी आपको शायद याद हो, है ना, कि वहाँ पे अंगूर जो हैं वो बहुत होते हैं, अंगूरों के बाग जो हैं, तो इसलिए हर घर में ही इसको, जैसे हम मैं कहूँगी कि हम अपने चाय पीते हैं इंडिया पाकिस्तान में, तो ये लोग जो है ये शीरा जो है अंगूर का शीरा ये पिया करते थे। ये बार-बार हमें पुराने अहदनामे में ज़िक्र मिलता है कि खुदावंद ने, क्योंकि ये औरतें भी पिया करती थी जो शीरा है, जैसे हम कहें क्या ना, तो खुदावंद ने जैसे सैमसन की माँ थी उसको मना किया था, या और भी हमें 1-2 जगह मिलता है। तो ये इसको इस तरह से वो पिया करते थे इस्राएली कौम, जो शीरा है, अंगूर का जूस हम कह सकते हैं ना, तो ये पिया करते थे। तो इसलिए ये 4 जो है एक किस्म के कह लें शीरे के जो अ, जूस के अंगूर के जूस
کہ वो प्याले जो हैं ये लिया करते थे, और रोटी होती थी, देख मेरी रोटी उसमें, और अंडा अंडा भी जो है वो यानी उसको बॉयल नहीं, उसको रोस्ट किया करते थे, जैसे आग पे जैसे इसको बर्रे को खुदा ने कहा कि वो आग पे भून के खाना है ना, या रोस्ट करना। तो इसी तरह ये अंडे को भी उसमें भूनते हैं आग में, और फिर ये लोग ये सलाद जिसको हम लेटस और या सलाद पत्ता कहते हैं, वो इस इनकी प्लेट में या टेबल पे होता है। और एक ये कह लें धनिये की तरह जो पार्सली है, या सेलरी, या मूली, या कार्पस, इसको एक है, इसको बोलते हैं। इनमें से कोई भी, जैसे कि अभी खरूज की किताब में हमने देखा कि वो कड़वी यानी सब्जियां, तो उसमें से इनमें से कोई भी, यानी जो एक मूली है उसमें भी आपने देखा होगा कि एक कड़वा सा टेस्ट या एक तेज सा टेस्ट होता है। और पार्सली, इसका भी थोड़ा टेस्ट जो है, इसका जायका जो है इस तरह का होता है। सेलरी जो है उसका भी एक इसी तरह का थोड़ा सा टेस्ट होता है। तो इसलिए इनमें से कोई भी एक चीज जो है वो अपनी प्लेट में या टेबल पे वो रखते हैं, यानी पार्सली में से, सेलरी में से, या जो मूली है, या कार्पस, इसमें से कोई भी एक चीज जो है टेबल पे ये खाने के लिए रखते हैं। और उसके साथ एक प्याला जो है, जिसमें वो इधर में नहीं है, जिसमें पानी में उन्होंने नमक मिलाया होता है। ये इसके बीच में शायद है, और मुझे मिली नहीं। बहरहाल, तो एक प्याले में पानी उन्होंने उसके साथ रखा होता है, ये जो सेलरी है या पार्सली है, इसके साथ वो लेते हैं इसको। और मिक्स उन्होंने फ्रूट जो है, जिसमें सेब, अ, सेब कई किस्म के जैसे होते हैं, यानी ग्रीन जैसे है या उसकी जो भी किस्में हैं, तो और उसमें दालचीनी और ड्राई फ्रूट जो है वो मिला के, और उसमें थोड़ा सा ये शीरा जो होता है वो मिला के, इसको थोड़ा सा जैसे कह लें कूट के, जैसे कह लें ज्यादा पेस्ट सा नहीं, लेकिन एक जैसे मैं कहूंगी दादर सा जो हम कहते हैं ना, थोड़ा सा कूट के और काट के, ये सारी चीजें जो थी ये इसमें लाइक जैसे ड्राई फ्रूट सा जो है, मिक्स फ्रूट जो है उसमें मिलाते थे, और ये टेबल पे होता था उनके, है ना। और जो भुनी हुई उसकी जो बर्रा था, यानी उसकी हड्डी जो वो था, वो रखते थे। तो ये सारी चीजें जो थी, यानी रोटी और मिक्स फ्रूट जो है, और ये सैलरी जो है, अंडा और सलाद पत्ता और अंगूरों का शीरा, इन सब के पीछे थोड़ा थोड़ा इनके जो मीनिंग थे, और उसको जब वो लेते थे, इस टेबल को तैयार करते थे। और ये तैयारी एक खास तैयारी होती थी, जैसा कि शायद अभी हम हवाले जो है नहीं पढ़ेंगे, कि खुदा यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को कहा कि फसा की तैयारी करो। तो ये ऐसे ही नहीं जैसे आम हम रोटी या लेते हैं, इसकी एक तैयारी जो थी, या अभी भी ये लोग करते हैं, जैसा कि हमने कहा कि कल भी बात की थी कि ये ना सिर्फ ये इस टेबल को तैयार करते हैं, बल्कि अपने आप को भी तैयार करते हैं। या कुर्बानियां आज अब तो नहीं करते, लेकिन जब हैकल थी तो तब ये कुर्बानियां जो थी वो रोज ही किया करते थे। जैसे हिजकिय्याह की किताब में हमने पढ़ा कि रोज ही वो खुदा की कुर्बानी और जो सौखनी कुर्बानियां हैं वो रोज बर्रा जो है उसकी कुर्बानी जो है वो किया करते थे, है ना। तो इसलिए ये 7 दिन तक, यानी महीने की 14 तारीख को फसा का दिन जो है, या फसा जो है शुरू होता है शाम के टाइम, क्योंकि खुदावन ने इनको जब मिस्र में से निकाला तो शाम का वो ये सारा जो था इन्होंने वहां पे वो खाना जो खाया, या वहां से खुदावन ने इनको निकाला शाम के वक्त। तो इसलिए ये शाम के वक्त
फसा जो है इनका शुरू होता है और 7 दिन तक फिर ये कुर्बानियाँ करते हैं और 2 दिन तक कह लें 15 और 16 तारीख को इनका फसा जो है ऐसे कह लें कि टेबल तैयार होता है और ये पूरी फैमिली जो है वो बैठ के इस तरह फसा जो है वो करते हैं और ये जो चीज़ें हैं जो सारी इसमें हैं उसको खाते हैं और साथ-साथ अपनी जो उनकी बुक है उसमें से पढ़ते हैं। तो इसके थोड़े-थोड़े जो मीनिंग है वो मैंने कहा कि हमें पता होना चाहिए ताकि हम भी क्योंकि क्या है रूहानी तौर पे इस्राएल हैं और हम भी इस फसह को जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि इसको मेरी यादगारी के तौर पे मनाया करना या मेरी यादगारी के पर तो हम कल पे थोड़ा इस पे थोड़ी और बात करेंगे कि हमने इसको किस तरह मनाना है, लेकिन इन चीज़ों के क्या मीनिंग है वो थोड़ा-सा हम सीखते हैं कि ये जो मैं है इसका हमें थोड़ा-थोड़ा तो अंदाज़ा है। लेकिन हम थोड़ा-सा सीखते हैं कि ये अंगूरों का जो शीरा है, ये खुदा को इज़्ज़त देना, उसको जानना, कबूल करना, तस्लीम करना, समझना, उसकी अच्छाइयों को जानना, उससे जो उसकी अ, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उससे जो हम फ़ायदा उठाते हैं या उससे जो भी हमें खुदावंद से मिलता है, उसको समझना वो हम यानी जब हम ये लेते हैं तो अ, उसको एक समझते हैं कि खुदावंद ही अच्छा है या खुदावंद ही बड़ा है और वो सब कर सकता है, उसके इख्तियार में सब कुछ है। वो हर जो मुश्किल है, उसको हल करने की उसके पास कुदरत है, वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जो कुदरत है, ताकत जो है, वो रखता है। उसके पास पूरा इख्तियार है, यानी ये अंगूरों का शीरा जो है, ये इस चीज़ को यानी ये पेश करता है जब ये लेते हैं, है ना? और ये इस चीज़ को भी पेश करता है, शादमानी को, खुशी को पेश करता है। ये बादशाहों का, शहंशाहों का ये ड्रिंक है, जो अंगूरों का शीरा जो लेते हैं हम। ये आज़ादी को पेश करता है क्योंकि मिस्रियों से खुदावंद ने उनको अ, इस्राएलियों को आज़ाद कराया, तो ये आज़ादी को भी पेश करता है। वो खाने के दौरान इसको 4 दफ़ा इस्राएली जो हैं, वो लेते हैं। 4 ये 4 जो कप हैं, तो बीच में यानी इससे शुरू करने से पहले उनका नरसिंगा फूँका जाता है, पूरे जैसे कह लें और वो तब ये शुरू करते हैं अपनी एक किस्म की इबादत और फिर जो शीरा है, उसका जैसे कह लें 1 घूँट पहले लेते हैं और जो प्रेयर है अपनी जो है खुदावंद के वो करते हैं। और ये जो पहला एक किस्म का कह लें कप जो लेते हैं अम, निदा आप निकालना उम, खरूज 6 बाब उसकी जी। 6 आयत से पढ़ना। खरूज 6 बाब, कूच की किताब अंजना 6 बाब उसकी 6 आयत से पढ़ना कि ये कप जो हैं, ये जो बीच में और शुरू में पीते हैं, एक-एक जैसे कह लें घूँट और खुदावंद ने भी पहले लिया और फिर अपने शागिर्दों को भी दिया। तो उसके पीछे मीनिंग क्या है? जी, खरूज की किताब 6 बाब उसकी हाँ 6 जी, आयत मिल क्या गया पढ़ना? हुँ, जी। ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਲੰਬੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਗਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ उपरांत मूसा हालेलुया। ने आमीन हाँ जी, जी निदा।
सो तू बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद हूँ, और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा, और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा। आगे। हाँ जी। और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी मेरी कौम बन जाओ, और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ, और जिस मुल्क को हाँ, इब्राहिम। ओके। हालेलुया। हाँ जी। इन्हीं आयतों में 4 दफ़ा खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें क्या करूँगा? बोझों से निकाल लूँगा। मैं तुम्हें गुलामी से निकाल लूँगा। मैं तुम्हें रिहाई दूँगा। मैं तुम्हें ले लूँगा। 4 बार ये खुदावंद ने जैसे कह लें फ़र्क-फ़र्क तरीके से एक ही बात को कहा कि मैं बोझों के नीचे से निकाल लूँगा, मैं गुलामी में से निकाल लूँगा, मैं तुम्हें रिहाई दूँगा, मैं तुम्हें ले लूँगा, अपनी उम्मत जो है वो बना लूँगा, है ना? तो ये हर एक जो खुदावंद ने एक किस्म का उनकी ज़िंदगी में काम किया, उनको बोझों से निकाला क्योंकि वहाँ पे क्या थे, ये गुलाम थे, ये ईंटें बनाते थे, ये बोझ उठाते थे, गारा बनाते थे। तो खुदावंद ये पहला कप लेते हैं यानी अ, तो इस चीज़ को ये याद करते हैं कि खुदावंद ने हमें बोझों में से निकाल लिया। हम जो उस मुल्क मिस्र में बोझ के तले दबे हुए थे, है ना? तो उसमें से हमें निकाल लिया। और फिर दूसरा कप लेते हैं यानी बीच में अ, दूसरे-दूसरे जो चीज़ें हैं वो खाते हैं और फिर दूसरा कप लेते हैं कि खुदावंद ने हमें क्या किया? गुलामी में से निकाल लिया। ये इसी में 3 आयतों में कह लें 2 आयतों में खुदावंद ने ये 4 बार रिहाई का कह लें या निजात का या मुक्ति दिलाने के लिए खुदावंद ने उनको उनके साथ वादे किए और उनको पूरा किया, है ना? और फिर वो लेते हैं तीसरा कप की रिहाई दी। खुदावंद ने वहाँ से मिस्र से फ़िरौन से उसके जो थे वहाँ से मुल्क मिस्र से रिहाई दी। वो जो गुलामी में कैद में ज़िंदगी गुज़ारे थे वो कुछ भी जैसे कह लें अपनी मर्ज़ी से कर नहीं सकते थे, है ना? तो खुदावंद ने वहाँ से उस कैद से, उस जेल से कह लें कि रिहाई दी। और फिर खुदावंद ने वादा किया, कहा कि मैं तुम्हें ले लूँगा। किस लिए? ताकि अपनी अ, कौम बनाऊँ और अपनी जो खुदावंद ने उनके साथ वादे किए थे इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, खुदावंद उनको उस मिरास में से हिस्सा दे। तो इसलिए खुदावंद ने ये वादे जो किए हैं, वो उन वादों को याद करते हैं और कह लें कि उनकी शुक्रगुज़ारी जो है वो करते हैं। इसलिए ये अंगूर के 4 जो कप हैं, एक-एक प्रॉमिस है, एक-एक वादा जो है, जो खुदावंद ने कह लें पूरा किया। और जब ये अंगूर का शीरा जो वो पीते हैं कह लें एक-एक घूँट करके, तो वो उन वादों को याद करते हैं, एक-एक कप लेके। तो इसलिए ये जो इसका मीनिंग है, ये अपने टेबल पे ये कप जो है या ये शीरा जो है, वो रखते हैं और उसको एक किस्म का 4 दफ़ा जो है ये पीते हैं। ये अंगूर का जो शीरा है ना? तो ये अगर अब हमारी ज़िंदगी में देखें, हम मसीही जो हैं, क्योंकि मैं साथ-साथ ही इसकी थोड़े-से जो हमारे साथ रिलेटेड हैं वो भी हमें पता होना चाहिए या इसीलिए मैंने कहा कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें भी क्या है, खुदावंद ने क्या किया है, दुनिया में से निकाला है। हम बोझ के नीचे दबे हुए थे, है ना? हमारे मुश्किलें जो हैं, परेशानियाँ हैं, दुःख हैं, तकलीफ़ें हैं और खुदावंद हम उन बोझों में से निकाल लिया खुदावंद ने। खुदावंद ने शैतान की गुलामी में से निकाल लिया। हम उसके क्या थे? नौकर थे। जो कुछ वो कहता था, हमें करना पड़ता है। कई दफ़ा हमें पता होता है कि ये झूठ है ये चोरी है, ये नहीं करना। हमारे अंदर एक जैसे कह लें ज़मीर होता है कि हमें पता होता है ये नहीं, लेकिन वो ज़बरदस्ती कह लें कि हमें हम कर देते हैं। कि क्योंकि हम क्या हैं उसकी कैद में हैं, उसके गुलामी में होते हैं शैतान की। तो इसलिए हमें वो ना चाहते हुए भी जैसे पौलुस रसूल ने भी इस बात को कहा
کہ وہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے برے کام ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس میں پھنسے ہوتے ہیں، ہم اس کی قید میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خداوند نے کیا کیا، شیطان کے اس میں سے ہمیں غلامی میں سے، کیونکہ نوکر تھے ہم، جو وہ کہتا تھا ہمیں کرنا پڑتا تھا شیطان، تو اس میں سے ہمیں خداوند نے نکال لیا۔ تو اس لیے یہ ہم بھی جو مسیحی ہیں نئے عہد نامے کے، ہم بھی خداوند نے کیا کیا، ہمیں اس جو مالک تھا، جو ہمارا ظالم مالک تھا، یا شوہر کے ساتھ بھی اس کو تشبیہ دی ہے، لیکن اس وقت ابھی ہم یہی اس پہ کریں گے کہ جو مالک تھا، جو شیطان تھا، جو دنیا کا خدا اس کو کہا گیا ہے، تو اس سے شیطان سے ہمیں خداوند نے اس کی غلامی میں سے ہمیں آزاد کیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ منانا ہے، یا ہمیں بھی یہ ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے کہ رہائی دی، آزاد کیا، ہے نا۔ تو خداوند نے وہ اس کی جو ہم جال میں پھنسے ہوئے تھے، اس کے ہم اس میں قید میں تھے، تو خداوند نے ہمیں رہائی دی، جس طرح کے ہمیں بھی گناہ کی زندگی سے خداوند نے ہمیں رہائی دی۔ اب ہم خداوند کی جو مرضی ہے یا خداوند کے جو نیک کام ہیں وہ کرتے ہیں، ہے نا، یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے خداوند نے ہمیں رہائی دی، اور خداوند نے کیا کیا، ہمیں اپنے لے لیا۔ جو چوتھا ہے، خداوند نے کیا کیا، ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے چن لیا، خداوند نے ہمیں لے لیا، ہم نے خداوند کو نہیں چنا، خداوند نے ہمیں چن لیا، خداوند نے ہمیں لے لیا اپنی دلہن کے طور پہ، ہے نا، خداوند یسوع مسیح نے۔ تو اس لیے یہ سارے جو وعدے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح میں آ کے پورے ہو جاتے ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب جہاں کہیں بھی ہم بوجھ سے دبے ہوئے تھے، خداوند نے ہمیں آزاد کیا۔ اب ہمیں یہ اس میں دبے نہیں رہنا چاہیے، یا وہ جو شیطان ہمارے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے ٹیسٹمنی میں سنا کہ وہ قید میں تھی، جیسے کہہ لیں 14 سال، جیسے امندیپ کو کہہ لیں کہ ہوگی، کہ وہ اس درد میں سے، تکلیف میں سے گزر رہی تھی، لیکن خداوند نے کیا کیا، اس کو آزاد کیا، خداوند نے اس کو رہائی دی۔ وہ بوجھ کے تلے دبی ہوئی تھی، تو خداوند نے اس کو رہائی دی، ہے نا، خداوند نے اس کو اپنے لیے لے لیا، اس نے دنیا میں سے چن لیا، غیر قوموں میں سے اس کو لے آیا، ہے نا۔ اور ندا کو جیسے اس نے کتنی تکلیف یہ برداشت کی، لیکن خداوند نے اس کو رہائی دی۔ تو یہ رہائی جو ہے ہماری جو ہے ان دشمن کی فوجوں سے یا شیطان سے، وہ جیسے کہہ لیں ہو رہی ہے، ہم آزاد جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ جو ہمارے مروسی گناہ تھے، جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں آزادی مل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جہاں کہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اپنے ہی کہیں ہم نے دروازے جہاں کھولے ہوتے ہیں، تو خداوند اس سے ہمیں رہائی دیتا ہے، ہمیں نجات دیتا ہے، ہمیں اس کی غلامی میں سے نکال لیتا ہے۔ تو اس لیے انگور کا جو شیرہ ہے وہ اس چیز کو پیش کرتا ہے، اور یہ 4 جو کپ ہیں یا 4 جو وعدے ہیں، جو عہد ہیں، جیسے کہہ لیں کہ وہ خداوند نے پورے کیے جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں، اور اسرائیلیوں کے ساتھ بھی کیے، ہے نا، اور ان کو خداوند نے پورا کیا۔ اور پھر بے خمیری جو روٹی ہے، یہ جو روٹی ہے جس میں ہم نے کل تھوڑا سیکھا کہ وہ خمیر جو کیا بولتے ہیں اس کو، وہ نہیں ملا ہوا، تو یہ اس چیز کا نشان ہے کہ جیسے مصریوں نے، ہم نے کل پڑھا کہ انہوں جلدی جلدی وہاں سے نکلے تھے، ہڑبڑی میں نکلے تھے، اور یہ سختی کی روٹی کو پیش کرتی ہے، دکھ کی روٹی کو پیش کرتی ہے نا۔ لیکن خداوند جو ہے بڑے اپنے جاہو جلال سے، یا کہہ لیں زور بازو سے، خداوند جو تھا ان کو مصریوں کی اس میں سے نکال کے لے آیا۔ تو اب یہ ہم جو مسیحی ہیں، ہمارے لیے کیا ہے، خداوند یسوع مسیح یہ روٹی ہے نا، یہ روٹی بے خمیری روٹی جو ہے، جس میں یہ نہیں ملا ہوتا خمیر، ہے نا، تو ہمارے لیے یعنی یہ خمیر جو ہے وہ گناہ کو پیش کرتا ہے۔ تو ہمارا زندہ خدا یسوع مسیح، اس میں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا تھا، ہے نا، چاہتا یعنی ہے۔ تو یہ بے خمیری جو روٹی ہے، یہ خدا یسوع مسیح کو پیش کرتی ہے، اور
उसमें कोई गुनाह नहीं पाया जाता, और उसी के वसीला से कह लें कि ये जो रोटी है जो हम लेते हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के बदन को भी पेश करती है, खुदावंद यीशु मसीह के यानी कलाम को भी पेश करती है। जैसे मना जो आसमान से उतरा था आगे ये इसराइलियों को मना जो था आसमान से गिरता था, तो उसको भी रोटी कहा गया है ना, और कलाम कहा गया। तो ये खुदावंद यीशु मसीह में आके पूरा हो जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे खातिर अपने बदन को तोड़ा, ताकि हम जो है रिहाई पाएँ, आज़ाद हों, बहाल हों, और जिस तरह मिस्रियों को आज़ाद किया था, इसी तरह हम भी आज़ाद होते हैं। कहीं हमारे शैतान की कैद में हैं, बीमारियों की सूरत में, या कहीं पे भी वो हमें दुःख दे रहा है, दर्द दे रहा है ना? तो जिस तरह इनकी क्या थी, इनकी दुःख की रोटी कहा गया था, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, ये दुःख में, तकलीफ में, अज़ियत में ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। सख्ती थी इनके ऊपर, यानी जो वो फ़िरौन था, इनके ऊपर बहुत सख्ती करता था, और दुःख में, तकलीफ में इन्होंने वहाँ पे ज़िंदगी जो थी गुज़ारी थी, है ना? तो लेकिन अब वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, वो सारा दुःख, सारी तकलीफ, सारे जो थे अपने ऊपर ले लिया, अपने बदन को तोड़ दिया, है ना? यानी जो कोड़े खाए और तकलीफें जो थी, हमारे जो बोझ थे, खुदावंद यीशु मसीह ने सारी सख्तियाँ जो थी, सारे वो अपने ऊपर ले ली, ताकि हम जो हैं निजात पाएँ, हम जो हैं उस तकलीफ में से ना गुज़रें, हम उसकी कैद में ना रहें शैतान की। हमें उसने आज़ाद कर लिया और अपने बदन को जो था कुर्बान कर दिया हमारी खातिर, है ना? तो इसलिए हम जो इसको इस तरह जो है बेख़मीरी रोटी को लेते हैं कि इसमें कोई गुनाह नहीं पाया जाता। तो हम भी जो है अगर इसको लेते रहेंगे तो हम भी यानी वो बेख़मीरी रोटी बनेंगे, क्योंकि जैसे आगे चल के हमने सीखा कि हम वो 2 रोटियाँ हैं जो अम, जिनको खुदावंद यीशु मसीह जो हैं, या पहले फल जो था खुदावंद यीशु मसीह है, और हम भी पहले फल हैं, तो हम वो रोटियाँ हैं। तो हम में भी कोई ख़मीर जो है वो नहीं पाया जाना चाहिए। तब हम उस तरह से कह लें खुदावंद यीशु मसीह में पेवस्त होते हैं या जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर भी गुनाह जो है वो नहीं रहता फिर, है ना? तो इस तरह से हम जो अपने दुःख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जिसमें से खुदावंद हमें बड़े कुदरत के साथ निकाल के ले आया, और खुदावंद यीशु मसीह ने वो दुःख अपने ऊपर ले लिए, जो सख्तियाँ उसने सही सलीब पे, है ना? तो उसको हमें रोज़ जो है वो याद रखना चाहिए। जिस तरह की इस्राएली कौम जो थी, खुदावंद ने उनको कहा कि जैसे मैंने जो कुछ मैंने किया है, इस रात किया था, उसको नस्ल दर नस्ल याद रखना। तो हमें भी हर वक़्त ये याद रखना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपने बदन को तोड़ा है। उसने तकलीफ में से, दर्द में से गुज़रा है। तो हमें ये आज़ादी जो है ऐसे ही नहीं मिल गई, है ना? या जिस तरह इसराइलियों के लिए भी वो बर्रे को कुर्बान किया गया था, उसके लहू को बहाया था, ऐसे ही उनको आज़ादी जो है वो नहीं मिली थी। सॉरी, अ, मेरा टाइम कितना हो गया है? मैंने आज टाइम देखा ही नहीं। मेरा टाइम खत्म हो गया है, तो हम बाकी का फिर कल करेंगे, है ना? जी, हाँ जी, हो गया। हाँ, हाँ। 10 मिनट ऊपर हो तो गए। जी, ओके, ओके। तो हमने आज 2 जो हैं इसका मतलब किए हैं। मेरे ज़हन में था कि मैं आज ये सारा कर लूँगी, लेकिन हम इसको बाकी को फिर जो है वो कल करेंगे, है ना? तो इसलिए हमें ये जानना ये ज़रूरी है, जिस तरह इस्राएलियों को खुदावंद ने कहा कि इसको याद करना, यादगारी के तौर पे मनाना, तो बिल्कुल इसी तरह उनको जो आज़ाद किया था, निजात मिली थी, रिहाई मिली थी, खुदावंद ने उनको कहा कि ये याद करना, ये याद रखना, और नस्ल दर नस्ल इसको मनाना। तो बिल्कुल इसी तरह हम भी, हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, जिस तरह से मिली है खुदावंद यीशु मसीह के खून बहाने के वसीला से, अ, तो हमें भी ये याद रखना चाहिए। तो कल हम उस पे आगे और थोड़ी-सी बात करेंगे और सीखेंगे कि हमें अम, ये फसह जो है, ये क्यों मनाना ज़रूरी है ना? तो इसलिए
ये थोड़ा-थोड़ा जो सीखना था वो मैंने कहा कि हम सीखेंगे, ताकि खुदावंद ने क्योंकि हमें कहा है ये सीखो और याद करो, तो हम इसको याद रखेंगे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और मुझे भी, कि हम खुदावंद की कुर्बानी को कभी ना भूलें। जो उसकी सलीबी मौत है, उसने इस तरह ये जो बर्रा कुर्बान हुआ था, बिल्कुल इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो बेऐब बर्रा है, उसमें कोई नुक्स, कोई ऐब नहीं पाया जाता था, वो हमारी खातिर कुर्बान हुआ। और उसके लहू के वसीले से आज दुश्मन की फौजें हैं, शैतान जो है वो हमसे डरता है, काँपता है, हमसे, हमारे अंदर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह है, खुदावंद पाक रूह है, और हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छुपे हुए हैं, इसलिए वो हमसे डरता है और मौत का फरिश्ता गुजर जाता है। इसलिए हमें ये याद रखना है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। बैक टू सुरैया। जी, सुरैया है हमारे साथ? सुरैया है हमारे साथ? हेलो, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। ऑन नहीं हो रहा था। ओके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। सबसे बढ़कर ये कि वो हमारी जो रूहानी ज़रूरियात है उसको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी कर रहे हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हम हर रोज़ ऑनलाइन प्रेयर करते हैं। हम खुदावंद का शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद के इस खुले दरवाजे के लिए, खुदावंद की इसकी मोहब्बत और उसके इस फजल के लिए जो उसने हम पर किया कि हम कहीं भी बैठे हुए हैं तो भी हम उसके कलाम से आशना हो रहे हैं, हम उसके कलाम से फेमिलियर हो रहे हैं, हम उसके कलाम को समझ रहे हैं, हम उसके कलाम को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये यस। खुदावंद की हम सब पर बड़ी ही मेहरबानी है कि उसने हम नकम्मों पर ये सारा कुछ किया कि हम एक दूसरे से दूर है तो भी हम मसीह यीशु में एक होते हुए हम उसका बॉडी होते हुए, उसका बदन होते हुए हम एक हैं और ईमान रखते हैं कि जो उसने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे तो मैं वहां पर मौजूद हूँगा। तो हम ईमान रखते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है, इस ग्रुप में यस। मौजूद है। हम यस उसकी मौजूदगी के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं, उसके कलाम के वादों के लिए, उसके कलाम की खूबसूरती के लिए, उसके कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है, उसका कलाम जो हमारी सहायता करता है, उसका कलाम जो हमारी तसल्ली बनता है, उसका कलाम जो हमारी तरबियत करता है, उसका कलाम जो हमें हमारी कांट छांट तराश करता है और हमारी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करता है। हम उसके कलाम के लिए खुदावंद का ही शुक्र अदा करते हैं। सो आए यस खुदावंद का शुक्र करते हैं क्योंकि वह भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसका प्यार निराला है। सो खुदावंद का शुक्र हो आज के यस। सारे कलाम के लिए। हम खुदावंद का शुक्रगुज़ार हैं और खुदा से मिन्नत करते हैं कि आज जो कुछ भी उसने हमें आज हमें फसह के बारे में खुदावंद ने बताया, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जिस तौर से उसने हमें बताया कि हमने जल्दी-जल्दी ये सारा कुछ करना है, जूतियाँ पहननी हैं, हमने रोटी खानी है, सो हमने हाथों में लाठियाँ लेनी हैं। सो खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें आज इस बात से हमें हमें तरबियत दी, हमें हमें बताया कि किस तौर से हमने इन तमाम बातों को अपनी ज़िंदगी में लेना है। सो खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ़, उसकी सताइश करते हैं। यस लॉर्ड। यस लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तू हमारा हालेलुया। आसमानी बाप है, मसीह यीशु में हमारा खुदा है, हम मसीह यीशु में हमारा बाप है, हमारा आसमानी बाप है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे साथ रहता है, तो तू हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। तेरी ही यस तारीफ और तेरी लॉर्ड। सताइश करते हैं ऐ बाप आसमानी। खुदावंद बख्श दे कि जो कुछ भी तूने हमें फसह के ताल्लुक से बताया है, समझाया, सिखाया है, ऐ बाप बख्श दे कि ऐ बाप जिस तौर से खुदावंद खुदावंद ये लोग खुदावंद
इसराइली खुदावन ये सारा कुछ करते थे, रूहानी तो खुदावन अब आप बदनी तौर पर करते थे, लेकिन आज हम जो रूहानी इसराइली हैं, अब आप वक्त है कि अब आप हम भी वो सब कुछ करें। अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस खुदावन लॉर्ड, आज यस जिस लॉर्ड, दोस्त ने कहा कि अपनी कि तुम नस्ल दर नस्ल इस फसा को मनाना, अब आप वक्त है कि हम भी खुदावन अब आप अपने बच्चों में खुदावन अपनी नस्लों में अपने बच्चों में खुदावन इस सारे कलाम को खुदावन इम्पार्ट करें। हम इस सारे कलाम को खुदावन अपने बच्चों में खुदावन अब आप उनकी जिंदगियों में खुदावन समो सके, उनकी जिंदगियों में यस खुदावन लॉर्ड, उनको यस लॉर्ड, खुदावन ला सके। खुदावन तेरे पाक की मदद रहनुमाई से, तेरे कलाम की रहनुमाई से अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो खुदावन आज का कलाम खुदावन जो तू हमसे तूने जो किया है खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा ही शुक्र, तेरी तारीफ और इस्ताश करते हैं जलाली पिता। खुदावन तेरी शादमानी खुदावन हमारी जिंदगी में ठहर जाए, खुदावन तेरी भरपूरी हमारी जिंदगी में ठहर जाए। यस यीशु लॉर्ड, मसीह के नाम से बाप तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। यस फादर गॉड, आज तूने हमें प्यालों के बारे में खुदावन बताया है, बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। बाप तेरा यस, शुक्र और तेरी तारीफ और इस्ताश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन तूने अंगूर के बारे में बताया, शीरे के बारे में बताया, अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं। वक्त है कि अब आप खुदावन तूने बताया है कि अब आप ये जो तू खुदावन शीरे का मतलब क्या, मैं का मतलब क्या है, कि तू जो नामुमकिनात का खुदा है, तू जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अब आप वक्त है कि हम तेरी इसी कुदरत को खुदावन अपनी जिंदगी में लेते रहें, तेरी इसी कुदरत को, तेरे इसी कलाम को अपनी जिंदगी में, जहां पर हमें नामुमकिन नजर आता है, जहां पर अब आप हमें दावन अब आप दावन दावन कुछ नजर नहीं आता, लेकिन वहां पर तू साबित कर देता है, वहां पर तू मुमकिन कर देता है, वहां पर तू देख लेता है। और खुदावन तू ओह ऐसे यस लॉर्ड, पा लेता है हालेलुया, कि गोया वो चीज मौजूद हो, तू उन चीजों को जो मौजूद नहीं है ऐसे बुला सके गोया वो मौजूद हो। अब आप हम तेरा शुक्र ओह अदा यस करते हैं खुदावन, लॉर्ड, तेरे इस यस बड़े लॉर्ड, भेद के लिए, तेरी इस बड़ी तसल्ली के लिए, तेरे बड़े इस इत्मीनान के लिए खुदावन जो तूने खुदावन हम पर यहाँ किया। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन तूने साबित करता है कि तू तेरे पास ही सारी कुदरत है, तेरे पास ही सारा यस इख्तियार लॉर्ड, है, तेरे यस पास ही लॉर्ड, सारा यस लॉर्ड, कंट्रोल है। क्या आसमान हो जमीन का हो, हर एक इख्तियार, हर एक कंट्रोल तेरे कंट्रोल में है, तेरे हाथ में है। तेरी कुदरत यस लॉर्ड, तू अपनी कुदरत जाहिर करता है और खुदावन हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। ऐ बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, यस तेरी लॉर्ड, ही तारीफ और इस्ताश करते हैं जलाली पिता। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस फादर गॉड, आज खुदावन खुदावन हम इस शीरे में शामिल हो जाते हैं। खुदावन जो यस खुदावन लॉर्ड, बादशाहों के लिए था, आज हम भी उसी शीरे में शामिल होते हैं। जब हम तेरे यस खून लॉर्ड, में शामिल होते हैं खुदावन, ऐ बाप हम भी ईमान से खुदावन खुदावन उसमें शामिल होते हैं, खुदावन तेरे खून यस में लॉर्ड, शामिल होते हैं। अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी ही तारीफ और इस्ताश करते हैं जलाली पिता। यस लॉर्ड, हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। और रज़ीली शिंदे पे रज़ीली ये रे खुदावन शेरे बेरे बेरे खुदावन बेरे, तू हमें खुदावन बोझ से निकालता है। खुदावन तूने हमें खुदावन गुलामी खुदावन तूने उनको मिस्र की गुलाम से, फिरौन की गुलामी से, उनके खुदावन जुओं से, उनके बोझों से खुदावन तूने उनको निकाला। आज खुदावन तू हमको हमारे यहाँ तरह की खुदावन रास्ते से खुदावन जो हम गुनाह के गुलाम हो जाते हैं, खुदावन शैतान के गुलाम हो जाते हैं, और यीशु मसीह के नाम से खुदावन तू हमें आज खुदावन उसकी गुलामी से, तेरे खून के वसीले से हम आजाद हो जाते हैं, उस फसा के यस वसीले से लॉर्ड, हम यस आजाद हो लॉर्ड, जाते हैं। अब बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस फादर गॉड, तेरा शुक्र हो, यस लॉर्ड, तेरे लहू यस के लॉर्ड, वसीले, तेरे बेटे के वसीले से खुदावन हम आज खुदावन वो उन बोझों से, उन गुनाहों से बाप रहाई पाते हैं। खुदावन जो यस हम लॉर्ड, यस खुदावन लॉर्ड, जो दुश्मन हमारे ऊपर करता है खुदावन, बाप हम उन तमाम खुदावन रुकावटों को दूर कर देते हैं बाप यीशु मसीह के नाम से। यीशु के प्रेज द नाम लॉर्ड, से, खुदावन तेरा ही शुक्र, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। और ये बे ज़िरी शिंद बोरा ज़िरी खुदावन तेरा यस ही शुक्र लॉर्ड, अदा यस करते हैं। लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस फादर गॉड, हालेलुया। खुदावन तू हमारे खुदावन तेरे लहू के वसीले से खुदावन तूने हमें आजाद कर दिया, तूने हमें खुदावन ले लिया, तूने हमें चुन लिया, खुदावन तूने हमें अलग थैंक यू कर लिया जीसस, अपने लिए खुदावन, अपनी बादशाही की वसत के लिए। अब आप तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ और इस्ताश करते हैं जलाली पिता। आज हम में से हर एक के साथ होना खुदावन, अब आप हम कहीं भी कहीं भी किसी भी एरिया में खुदावन अगर हम खुदावन अब आप खुदावन गुनाह के गुलाम है, या हमने खुदावन अब किसी भी ऐसी बात में, किसी भी ऐसे काम में जो हम खुदावन अब आप हमारा रिश्ता उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अब आप आज खुदावन हम तेरे लहू के वसीला से, खुदावन तेरे कलाम के वसीला से खुदावन में तमाम डोरियां काट डालते हैं। यस यीशु लॉर्ड, के यीशु के नाम नाम के से, वसीला से, तेरे खून के वसीला से, तेरी मुर्दों में से जीवित कुदरत के वसीला यस से, लॉर्ड, हर यीशु के नाम खुदावन से, हर तरह
का जुआ, हर तरह का बंधन अपनी जिंदगी से तोड़ डालते हैं यीशु मसीह के नाम से। बीमारी का खुदावन अब आप, नापाकी का खुदावन, हर तरह की खुदावन मायूसी का, उदासी का, और खुदावन अब आप यीशु के नाम से बाबा तमाम बंधन में, तमाम यस जुए लॉर्ड, को यस हम लॉर्ड, तोड़ यीशु के डालते हैं, नाम से, उसकी डोरियां तोड़ डालते हैं, उसकी डोरियां रस्सियां जब आप काट डालते हैं यीशु यीशु के के नाम नाम से। से। हालेलुया, हमारी डोरी तेरे साथ जुड़ जाए बाप, तेरे लहू के वसीले से बाप, तेरा यस शुक्र लॉर्ड, तेरी यस तारीफ हो। लॉर्ड, यस Oh, लॉर्ड। praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, glory to Jesus, तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। आज है बाप, हम तेरे लहू के वसीला से दान हम खुदा, दान हम दान दुश्मन के गुनाह के गुलाम नहीं है, बल्कि अब बाप हम तेरे गुलाम बन गए हैं, हम तेरी यस दुल्हन लॉर्ड, बन गए हैं। अब बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ तेरी सितारिश यस करते हैं। लॉर्ड, यस यस लॉर्ड, यस यीशु के फादर नाम। गॉड, दान पुराने यादनामे के लिए दान हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। दान जो एक अक्स है, जो एक साया है, ए बाप आने वाली खुदावन ए बाप नए यादनामे की तमाम तर बातों को बयान करता है। ए बाप हम तेरा यस लॉर्ड, शुक्र अदा करते हैं। यस प्रेज द लॉर्ड, आज खुदावन तू हमें कान तराश, हमें शेप दे खुदावन, हमें शेप दे, हमें खूबसूरत बना अपने कलाम के यस वसीला से, लॉर्ड, यस लॉर्ड, ताकि खुदावन यीशु जैसे के तुम्हें नाम से। बनाना चाहता है हम बनते चले जाएं और दुल्हन के माने तैयार होते चले जाए। ए यस बाप लॉर्ड, तेरा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तेरा यस शुक्र तेरी लॉर्ड, तारीफ यस तेरी लॉर्ड। तारीफ करते हैं। खुदावन तू हमें अपने गहरे भेदों को अयां करता चला जा खुदावन, खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया, यस तेरा लॉर्ड, शुक्र यस तेरी लॉर्ड। तारीफ खुदावन। आज खुदावन हर तरह का खमीर जो हमारे अंदर है खुदावन, खुदावन जिस तरह से तूने हमें सिखाया है कि बेखमीर रोटी लेना, और यीशु मसीह के नाम से दान वो जो दान बे अब बढ़ रहा है, वो जो दान जिबा किया हुआ बढ़ रहा है, वो जो खुदावन गुनाह से उसने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है, आज वही है बाप जिसके वसीला से हम भी गुनाह से आजाद हो सकते हैं। वही हमारी जिंदगी में गुनाह के जुए को तोड़ डालता है, वही हमारी यस जिंदगी में लॉर्ड, गुनाह को यीशु के दूर नाम। दूर दूर कर देता है। ए बाप हम तेरे बेटे के लिए दान उसके लहू के लिए बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा यस शुक्र लॉर्ड, हो, यस वो जो लॉर्ड, यीशु। बेऐब है, वो जो पाक है, वही हमें पाक कर सकता है, वही हमें प्योरीफाई कर सकता है, वही हमें यस लॉर्ड, दान यस लॉर्ड। सेंटिफाई कर सकता है। तेरा बेटा ही है बाप, यस फादर गॉड, क्योंकि उसी ने एलानिया कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है, हालेलुया, वही यस बेअब लॉर्ड। बढ़ रहा है, वही अब आप खुदान पाक है और वही पाक करने की कुदरत रखता है। अब आप तेरे बेटे की तरह शुक्र यस अदा लॉर्ड, करते हैं। यस लॉर्ड। तो आज जो खुदान हम तेरे बेटे के लिए खुदान उसके जो अगर वो खुदान ना आता, खुदान वो हमारे लिए सारा कुछ ना करता, तो खुदान हम कोई कौम, कोई कबीला ना होते, हम कोई उम्मत ना होते, हमारी कोई हैसियत ना होती, खुदान हमारी कोई भी खुदान अहमियत ना होती, लेकिन तेरे बेटे ने, तूने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और उसके वसीला से, उसके लहू के वसीला से खुदान आज है बाप हम है बाप मुकद्दस कौम ठहराते हैं, शाही खाना का फिरका होते हैं। ए बाप ओह तेरा यस शुक्र लॉर्ड, करते यस हैं, लॉर्ड। तेरा ही शुक्र हो, तूने कहा कि तुमने मुझको नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया, और तूने हमें थैंक यू चुन लिया, जीसस, तूने थैंक हमें यू अलग जीसस। कर लिया, तूने हमें खरीद लिया, अपना फिदिया देकर, अपना लहू ओह बनाकर तेरे यस बेटे लॉर्ड, ने। यस ए लॉर्ड। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे के लिए, उसने हमारी कीमत दे दी, उसने हमारा फिदिया दे दिया। ए बाप उसने वो लानतान किया गया बाप, वो जख्मी किया गया बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं उसके लहू के लिए, उसके मार खाने के लिए, दान उसके कोड़े खाने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। आज खुदावन यस लॉर्ड, हम तेरे यस आगे लॉर्ड। मिन्नत करते हैं खुदावन, तू हम में से हर एक के साथ हो और हम में से हर एक की खुदावन अब्बा जिंदगी में तू काम करे। खुदावन तेरा तेरा लहू खुदावन जो बहाया गया वो काम करे, खुदावन तेरा फसा हमारी जिंदगी में काम करे, और यीशु मसीह के नाम यस से लॉर्ड, बाप, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। यीशु मसीह के नाम से बाप, दावन तेरी मुर्दों में से जी उठी कुदरत हमारी जिंदगी में फ्लो करे यीशु के नाम से यीशु बाप, के नाम इन द से। नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो खुदावन पूरे ग्रुप के लिए, खुदावन जो जो जहाँ पर मौजूद है, एक एक जिंदगी के लिए खुदावन तेरी हजूरी को, तेरी भरपूरी को, खुदावन तेरी बहाली को, तेरी तसल्ली को, तेरे इत्मीनान को, खुदावन तेरे जोर को, तेरी कुव्वत को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से बाप। दावन सिस्टर अमनदीप के साथ हो खुदावन, और जिन्होंने गवाहियां दी निदा के साथ हो, अब आप खुदावन इनको इनको और मजबूत कर, दान इनके ईमान को और मजबूत कर, दान इनके साथ साथ रहे। अब सिस्टर अमनदीप में जो भी खुदावन कोई भी अभी प्रॉब्लम में अब तेरे यीशु नाम से जाती रहे, अपनी बंदी को जोर दे, ताकत दे, कुव्वत दे, और दान मजबूत कर, और अपना मसा दे, और दान अपनी बंदी को अपने में बढ़ा, और दान अब आप गहरे तौर पर तो अपनी बंदी को ले
और इस्तेमाल कर। खुदावन तेरी बंदी के वसीला से बहुत से और घराने तेरे पास आए। खुदावन इसकी जिंदगी के वसीला से, इसकी गवाहियों के वसीला से ऐ बाप दूसरे दान बाप दान तुझ में मजबूत होते चले जाएं। तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। सो खुदावन है बाप निदा के दर्शकों को गुजारा खुदावन निदा के साथ होना, निदा की बड़ी मदद और रहनुमाई करना खुदावन निदा की जिंदगी में तू और गहरे तौर पर काम करा। तेरा जलाली और यस कुदरत यीशु के हमेशा नाम से। निदा की जिंदगी में खुदावन है बाप बढ़ा रहे और इसकी फैमिली में बढ़ा रहे। खुदावन तेरे लोह की कुदरत को मांग लेते हैं। खुदावन अपनी बच्ची को बड़ी सहायता अपनी देना और बड़ा पाकरू का जोर देना, कुव्वत देना। खुदावन अपनी बंदी को पाकरू से भर देना, पाकरू से मामूर कर देना। खुदावन पाकरू की नदियां जारी हो जाएं, पाकरू की भरपूरी आए, पाकरू की आग आए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन तेरी बंदी यस तेरा लॉर्ड। तेरा तेरा ट्रमेंडस तेरी हजूरी का अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर सके यीशु मसीह के नाम से। खुदावन तेरी हजूरी का गहरा मुकाशफा खुदावन अपनी जिंदगी में ले सके और हासिल कर सके। यस फादर गॉड हालेलुया। तेरा ही शुक्र अदा करते हैं। सारा जलाल खुदावन उसकी फैमिली की जिंदगी से तेरे यीशु नाम को देते हैं। यस माय लॉर्ड तेरा यस शुक्र है। यस खुदावन अब आप यीशु रोमा के नाम। को खुदावन तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन रोमा के साथ होना, रोमा की तमाम तो जरूरत को पूरा करना। खुदावन अब आप उसके पूरे ग्रुप की तमाम तो जरूरत को पूरा करना। खुदावन अपने बच्चों इस फैमिली को खुदावन इस ग्रुप को खुदावन तो अपनी बड़ी कुदरत के वसीला से संभालना और इनकी तमाम तो जरूरत को पूरा करना। खुदावन ने बाप तेरा हाथ इनके लिए बढ़ा रहे, इनकी तमाम तो जरूरत को पूरा करने के लिए, खा वो रूहानी या यस जिस्मानी या बाप हर तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल तौर पर खुदावन तो अपने बच्चों को मजबूत करने के स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुदावन दरवाजों को खोलना है बाप, नाम और रस्तों को मार करना और खुदावन यीशु के जिंदगी को नाम से। तैयार करना, हाथों को तैयार करना, ज़हनों को सोचों को तैयार करना, इनकी तमाम तर जरूरियात को पूरा करने के लिए खुदावन रहने सहने का तमाम तर इंतजाम बाप तेरे ही हाथों से होता रहे बाप। और ये यीशु खुदावन के नाम कहते हैं से। बाप है ये खुदावन पर भरोसा करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावन हम तुझ पर अपनी आंखें लगाते, तुझ पर तुझ में उम्मीद रखते हैं खुदावन के तू अपने कलाम के मुताबिक इस पूरे ग्रुप की बड़ी मदद और हिफाजत निगहबानी करेगा और इनकी तमाम तर जरूरियात को पूरा करेगा, क्योंकि तू कहता है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। और यीशु के नाम से खुदावन इनकी खुदावन है बाप, खुदावन वो रूहानी मजदूरी, इनका वो रूहानी जो फल है खुदावन इनको मिले यीशु मसीह के नाम से बाप, इन द नेम ऑफ यीशु मसीह के नाम से बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप। खुदावन इनके साथ साथ रहना, पूरे ग्रुप पर तेरा हाथ हमेशा बढ़ा रहे, तेरा मस्सा इनकी जिंदगी में बढ़ता चला जाए और ये बच्चे खुदावन है बाप तेरा खुदावन तेरी हजूरी का एक्सपीरियंस करें, खुदावन तेरी हजूरी से सरशार हो यीशु के नाम से बाप, और अपनी गवाहियों के वसीला से खुदावन जो तू इनकी जिंदगी में करे खुदावन उनको दूसरे लोगों को अपने पास तेरे पास लाने का वसीला बने, तेरा चुना हुआ वसीला ठहरे। तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम सारा जल तेरा यीशु नाम को देते हैं। सो बाकी तमाम पूरे ग्रुप के साथ तो पूरे ग्रुप की बड़ी मदद और हिफाजत निगहबानी करना, तमाम तो जरूरत को पूरा करना, इनको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए और मजा कर। तेरा ही शुक्र अदा करते हैं, ये सब कुछ मांग लेते हैं ऐ बाप तेरे ही अजीम जलाली और कुदरत खुदावन पाक पवित्र नाम में तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से अब आप मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आने जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन। जय प्रीति। आमीन। गॉड ब्लेस यू टू। God bless you. आज मैंने देखा है कि ऐसे जैसे शुरू में मैंने देखा कि ऐसे हमारे ऊपर ना पानी ऐसे आबशार की सूरत में गिर रहा है और मैंने किसी को ऐसे देखा है कि जिससे उसके कंधों के ऊपर ना जैसे ये जुआ जो होता है वो है, लेकिन और वो जुआ है और साथ ही ऐसे देखा जैसे रस्सियों से ये वो जिसके शोल्डर जैसे जो हैं बांधे होते हैं। तो लेकिन मैंने ऐसे देखा है कि उसके ऊपर खून के कतरे जो हैं वो पड़े हैं और उसकी जो रस्सियां हैं वो खुल गई हैं, वो जो कंधे पे बंधा हुआ है वो लकड़ी जैसी ऐसे मैंने देखा है। तो वो जुए जो हैं वो टूट गए हैं, खुल गए हैं। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। खुदावंद ने हमारे ग्रुप में से किसी को इस तरह से वो जुए में कह लें दबा हुआ था, बोझ के तले दबा हुआ था, तो खुदावंद ने आज आपको आज़ाद किया है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारा जिंदा खुदा जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो नामुमकिनात का खुदा है। तो आप सब खुदावंद के ऊपर पूरा भरोसा रखें, ईमान रखें, विश्वास रखें
कि जहाँ कहीं भी आपको फ़ील होता है कि बोझ है, बंधनों में बंधे हुए हैं, खुदावंद जो है अपने वक़्त पे आपको जो है आज़ाद कर देगा, बहाल कर देगा। तो अगर आपको फ़ील हुआ है कुछ तो आप शेयर कर सकते हैं कि हल्का फ़ील हुआ है या खुदावंद ने आपको टच किया है, किसी को? ओके जी, चलें ठीक है। खुदावंद आपको बरकत दे, लेकिन खुदावंद ने आपको आज़ाद किया है कहीं अ, शायद किसी एरिया में आप फँसे हुए थे, तो खुदावंद ने आज आपको आज़ाद किया है। हाँ जी, और मैसेज के दौरान ही मतलब जब आप बता रहे थे कि जैसे हम वो इस्राएली जिस्मानी तौर पर ये करते थे और हम रूहानी इस्राएली हैं मतलब इस तरह से, तो मैं बताना चाह रही थी कि उसी दौरान जैसे मुझे लगा कि मतलब जब हम ये दुनियावी दुःख उठाते हैं, है ना? जिस्मानी तौर पे, तो रूहानी तौर पे भी पुख्तगी आती है उसमें हम में, है ना? खुदावंद कुछ हुँ, हुँ। हमारे लिए ऐसा करता है कि जिस्मानी तौर पर तो हम तकलीफ उठा रहे होते हैं, पर रूहानी तौर पर हम उसमें तरक्की पा रहे होते हैं। मज़बूत हर दफ़ा नहीं। हाँ जी, इस तरह से हुँ, खुदावंद का शुक्र। हुँ। बिल्कुल, प्रेज़ गॉड। बिल्कुल, इसीलिए हम इसको रूहानी तौर पे ले रहे हैं यानी खुदावंद ने हमें यही सिखाया है। तो खुदावंद का शुक्र हो कि आप जहाँ कहीं भी किसी बोझ के तले दबे हुए हैं, खुदावंद ने हमें आज़ाद किया, इसीलिए हमें उसने दुनिया में से ले लिया है। और ये शीरा जो है खुदावंद यीशु मसीह के खून को भी पेश करता है। तो इसलिए इसको लेना, रोटी को और शीरे को आगे चल के हम थोड़ा सीखेंगे कि ये इसलिए हमें सिर्फ़ यही खुदावंद ने करने के लिए कहा। लेकिन बाकी भी हम थोड़ा-थोड़ा सीखेंगे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद हमें तैयार कर रहा है। मुझे आज इस तरह ही फ़ील हुआ कि पहले उसने पानी से धोया, फिर मैंने खून को देखा और फिर जो जुआ था कि वो उसकी रस्सियाँ टूट गई हैं और खुल गया है। तो इसलिए खुदावंद हमें तैयार कर रहा है। तो अगर अ, यानी कोई ज़बरदस्ती नहीं है लेकिन ज़रूर आप मीटिंग में आया करें क्योंकि खुदावंद रोज़ हमें किसी न किसी कह लें कि अ, तरह आज़ाद कर रहा है, बहाल कर रहा है और पाक और साफ़ कर रहा है। तो मैंने तो इसको बड़ा महसूस किया है। तो ज़रूर आप भी कोशिश करें कि आप मीटिंग में ज़रूर आया करें, क्योंकि खुदा नया मसा हमारे ऊपर उंडेलता है। तो गॉड ब्लेस यू जी, गुड नाइट सबको।